हो सकता है, निश्चित नहीं है। गुड मॉर्निंग। आज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। वो चैप्टर में है, चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस होगा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। हाँ देखिए बुक लाइट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना। अच्छा ठीक है, वो चैप्टर पूरा हो गया था। आज एक चैप्टर बचा हुआ है, लाइट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना। इसको बताएंगे। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। आप पढ़े हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन and the process of traveling light in straight line is known as rectilinear propagation of light. Light travels in straight line. Most of us have seen the beam of light coming from the searchlight or airport tower or from the lighthouse near the sea. But we cannot see the light at all. We see only the dust particles. When light enters in our room, then the dust particles are seen. When light enters to our rooms by ventilators, then dust particles are seen, and we see that light is coming. Actually, light is not seen. Light दिखाई नहीं पड़ता. Light it is itself invisible, but it makes all the things visible. लाइट दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ये सब चीज को दिखाता है। जिस पर लाइट पड़ता है उससे रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वो उस चीज का इमेज हमारे आंख में बनता है, तब हम उसको देख पाते हैं। इसलिए लाइट तभी दिखाई पड़ता है जबकि उसका किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन हमारे आंखों तक पहुंचता है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसमें हुआ कि the process of traveling light in a straight line is known as rectilinear propagation of light. We all watch film in the theater. Have you ever observed the beam of light coming from the projector and falling on the big screen? In all the cases, the beam of light travels in a straight line path and not curved or zigzag. Zigzag path, that's whose direction is not fixed, is called zigzag path. These observations show that
light always travels in a straight line and it is known as rectilinear propagation of light. Due to this property, shadows are formed when light faces any obstacle. That is when there is any opaque object comes in the path of light, then the light cannot penetrate that object, that cannot pass it through the object, and this is the reason for the formation of shadow of an object. Due to this property, shadows are formed when light faces any obstruction. In nature, formation of eclipses are also based on this principle. Eclipse, solar eclipse and lunar eclipse. There are two types of eclipse. When the moon comes in between the sun and the earth, then solar eclipse occurs. The shadow of moon is cast on the surface of earth, and thus sometimes the sun is visible to us, or some portion of sun is not visible to us, and this is known as solar eclipse. But when earth comes in between the sun and the moon, then the lunar eclipse occurs, and in that case some of the portion or the entire moon is not visible to us for some time, and this is the lunar eclipse. देखिए इसमें दो तरह का ग्रहण आप लोग जानते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण तब लगता है जबकि अर्थ बीच में आ जाती है मूवमेंट का। आप जानते हैं कि अर्थ का दो मोशन है, एक तो रिवोल्यूशनरी मोशन है जो कि सन के चारों तरफ है, और एक रोटेशनल मोशन है जो कि अपने एक्सिस के चारों तरफ, यानी अपने एक्सिस के अबाउट ये घूमते रहती है एक टॉप की तरह, लट्टू की तरह। तो ये जो वो होता है रोटेशनल मोशन। देयर आर टू टाइप ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ, rotational motion and revolutionary motion. And in the revolution, when the moon comes in between sun and the earth, then sun is not visible for some time. कभी कभी मून जो बीच में आ जाता है, जो अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, तो हम सन को नहीं देख सकते, सन का लाइट अर्थ तक नहीं पहुंचता कुछ समय के लिए। तो वो स्थिति होती है सोलर इक्लिप्स की, सूर्य ग्रहण की, जबकि जो सन है वो छिप जाता है कुछ समय के लिए, वो नहीं दिखता है, तो उसको कहते हैं सोलर इक्लिप्स। और कभी कभी ऐसा होता है जबकि मून जो है जब मून जो है ये सन और अर्थ के बीच आ जाता है। नाम अपना लिखिए, रेडमी कॉल लिख रहे हैं, अपना नाम लिखिए तब एंट्री मिलेगा, ठीक है? नाम पूरा लिखिए, इसे पता नहीं चलता है। और अपना सभी जो है वीडियो ऑन रखिए। वीडियो ऐसा देखा गया है कि कुछ बाहरी बच्चे भी शामिल हो जाते हैं, इसलिए वीडियो ऑन कीजिए सभी। ओपन योर वीडियोस ऑल ऑफ यू एंड चेंज योर नेम Redmi 8। Who is Redmi 8? Whose name is written Redmi 8? I will not allow the students who either write the name, the mobile names or other names, they will not allow, ठीक है? अपना नाम आप अलाउ नहीं करेंगे उसको, रेडमी जो है चेंज कर लीजिए नाम, अपना जो भी नाम है लिखिए, ठीक है? तब ऐसे अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये बता रहे थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जब लाइट किसी ऑपेक और स्मूथ सरफेस पर पड़ता है तो उसे टकरा करके वापस आ जाता है। एंड द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय स्ट्राइकिंग ए स्मूथ एंड हार्ड सरफेस एंड ऑपेक सरफेस, स्मूथ हार्ड एंड ऑपेक सरफेस, इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। And due to reflection of light, we are able to see the nearby object or all the object all around us. जो भी चीज हमारे चारों तरफ है हम उसको देख पाते हैं रिफ्लेक्शन के कारण। अब देखिए, एक तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट हुआ, जो कि लाइट का एक फिनोमेना है कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन।
and the property is known as rapid linear propagation of light. लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है, इसको कहते हैं रैपिड लिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और लाइट का एक और खासियत है कि ये किसी भी मीडियम में, बिना मीडियम का भी चल सकता है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट नीड्स नो एनी मीडियम टू ट्रैवल, बट इट कैन ट्रैवल इन मीडियम आल्सो। जैसे कि ये एयर में भी चल सकता है, वाटर में भी चल सकता है, लेकिन ऑपेक ऑब्जेक्ट को पार नहीं कर सकता। और जो वैक्यूम है उसमें भी चलता है लाइट। तो लाइट के लिए कोई मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट कैन ट्रेवल्स इन एनी ऑफ द मीडियम, किसी भी मीडियम में लाइट ट्रेवल कर सकता है। और ये इसके जो रेडियो वेव है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी कारण ऐसा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हुआ कि लाइट जब किसी ऑपेक ऑब्जेक्ट में पड़ता है और स्मूथ सरफेस रहता है तो उससे टकरा के वापस आ जाता है। और किसी ऑपेक ऑब्जेक्ट स्मूथ सरफेस से टकरा के या अनइवन सरफेस से भी टकरा करके वापस आना लाइट का, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब लाइट स्मूथ सरफेस से टकराती है और वो वापस आती है, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रही है किसी प्लान मिरर पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलता है। और ये रिफ्लेक्शन जो है ये कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब के लाइट पड़ता है किसी भी अनइवन सरफेस पर, जो चिकना नहीं है उस सरफेस पर, और वहां से फिर जो रिफ्लेक्शन होता है तो वो एक डिफरेंट पैटर्न पर, पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल नहीं रहता बल्कि वो जो नॉन पैरेलल पर आता है, तो उसको हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आपके बुक में देखिए पेज नंबर 215, इसमें दिखाया गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरह का है, एक तो रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं, और दूसरा है इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करता है किसी सरफेस को, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फिर पैरेलल ही रह जाता है। तो जब रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही रह जाता है तो उसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। It is a reflection that takes place from a smooth and shiny surface. All the parallel beam of light falling on this surface is reflected back in one other direction. The rays of light remains parallel even after reflection. Such type of reflection is called regular reflection. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होता है जबकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन पैरेलल ही हो, यानी एक पैटर्न पर यदि होता है खास पैटर्न पर, तो उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन पैरेलल नहीं होता है तो वैसी स्थिति में इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसलिए यहाँ लिखा रेगुलर रिफ्लेक्शन में इट इज ए रिफ्लेक्शन दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम ए स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। All the parallel beam of light falling on this surface is reflected back in one other direction. यानी एक ही तरह से एक पैटर्न पर पैरेलल रूप में ही वो रिफ्लेक्शन उसका होता है। The ray of light remains parallel even after reflection. Such type of reflection is called regular reflection. Plant mirror, polished metals and still water have smooth surfaces. ये सब स्मूथ सरफेसेस है। हालांकि वैसे बोलता है कि जो सरफेस होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। तो हार्ड में जैसे वाटर से भी रिफ्लेक्शन होता है, वाटर में भी अपना प्रतिबिंब आप देख सकते हैं। अगर पानी बिल्कुल रुका हुआ है, अस्थिर स्टेगनेंट वाटर है, तो आप उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उसमें भी रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इन वाटर आल्सो, but that water should be stagnant. That is, there should be no any movement in water. वाटर में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर मूवमेंट होगा तब दिखाई नहीं पड़ेगा फिगर, अगर वो शांत रहेगा
जैसे मान लो किसी पैनल में हम पानी किसी भी पैन में हम पानी लेते हैं बर्तन में और उसमें जब अस्थिर हो जाता है तब हम देखते हैं तो उसमें हम अपना प्रतिबिंब दिखा पड़ता है। Plan mirrors, polished metals and still water have smooth surfaces, so the reflection from their surfaces is regular. इन सबसे रिफ्लेक्शन जो होता है वो रेगुलर होता है। It causes strong glare to our eyes and sometimes damage our eyes also. That is why we observe a glare when sunlight or light from a bulb shines on the surface of plan mirrors, polished metals or still water. बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का अगर लाइट हमारे आंख में जाएगा तो उससे जो है कॉर्निया डैमेज हो जाता है। कॉर्निया जो है वो डैमेज होता है और उससे पुपिल पर प्रभाव पड़ता है, आइरिस पुपिल जो कि लाइट के मात्रा को कंट्रोल करता है। इसलिए उसको ठीक करने के लिए चाहिए ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट हमारे आंख में ना पहुंचे, नहीं उसे ठीक रखने के लिए उसके देख रेख के लिए ये चाहिए बहुत ज्यादा। ऐसे सन को कभी डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, सूर्य को डायरेक्ट नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, उससे जो आंख खराब होने का खतरा रहता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट आता है। अब कभी सोलर इक्लिप्स होता है उसे भी नहीं देखना चाहिए, सोलर इक्लिप्स में भी बहुत तेज लाइट निकलती है और वह आंख तक पहुंचने के बाद आंख को खराब कर सकता है। इसलिए सोलर इक्लिप्स हुआ या सनलाइट हुआ इसको डायरेक्ट नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए। दूसरा इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, इसमें है कि जब सरफेस अनइवन हो यानी रूखरा हो, बिल्कुल समतल नहीं हो, बिल्कुल स्मूथ चिकना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो रिफ्लेक्शन होगा वो इरेगुलर पैटर्न में होता है। इट इज ए रिफ्लेक्शन दैट टेक्स प्लेस थ्रू ए रफ एंड डल सरफेस। The rays of light do not remain parallel after reflection from the surface. रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल नहीं रहा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट भी जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रहता। They scatter in different directions. Such type of reflection in which the parallel rays of incident light do not remain parallel after reflection is called irregular or diffuse reflection. तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रहे तब हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, यानी उसमें एक खास पैटर्न से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है बल्कि अलग ढंग से रिफ्लेक्शन हो रहा है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट remains not parallel after the reflection, then the reflection is called diffuse reflection or irregular reflection. The surface of odd mirror, old mirrors, old mirror अगर रहेगा तो उसमें जो है रिफ्लेक्शन बिल्कुल रेगुलर पैटर्न में नहीं होता। वैवी वाटर यदि है उसमें वेव उत्पन्न हो रहा है उसमें भी होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। So the reflection from the surface is irregular. It cuts off the glare and hence does not damage our eye. तो ये जो है उतना चमक इसमें नहीं रहता और इससे जो है हमारे आंख को उतना खतरा नहीं रहता, लेकिन ये जो है रिफ्लेक्शन से हम साफ इमेज नहीं देख पाएंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन से साफ इमेज बनता है, साफ तरह का इमेज देखा जाता है और ये इमेज प्राय वर्चुअल होता है। आप पढ़ेंगे कि दो तरह का इमेज होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज तब होता है जबकि रिफ्लेक्टेड रे वास्तव में करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे के वास्तव में मिलने से जो इमेज बनता है उसको कहते हैं रियल इमेज और रियल इमेज को पर्दे पर उतारा जा सकता है। और जब रिफ्लेक्टेड रे वास्तव में नहीं मिलते, वो किसी एक जगह से आता हुआ मालूम पड़ता है, तब वैसी स्थिति में हम कहते हैं कि वो वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज किसी पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। प्लान मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, इसलिए इससे बने हुए इमेज को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन कॉन्केव मिरर जो कि एक स्फेरिकल मिरर होता है उसके बारे में आप आगे विस्तार से पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि इमेज जो है बनता है किसी पर्दे पर उतारा जा सकता है और इसको कहते हैं रियल इमेज। A plan mirror has a flat reflecting surface. It is made of thin sheet of glass. The glass is silvered on one side. The silver covering is protected with a coating of lead oxide. Lead oxide PBO ये होता है जिससे
कि उसमें कवरिंग रहता है, लेड ऑक्साइड का लेप चढ़ा रहता है। आप देखे होंगे मिरर को, प्लान मिरर को, उसके पीछे लाल रंग का कोई चीज लेप चढ़ा हुआ रहता है ना। प्लान मिरर जब खोल करके आप देखेंगे जो उसके कवर है उससे, तो आप देखेंगे कि उसके पीछे लाल रंग का या नीले रंग का, किसी किसी में नीला रंग भी रहता है, किसी किसी में लाल रंग का, वो एक कवरिंग रहता है, ऊपर से लेड चढ़ाया हुआ रहता है, और वो जो है लेड ऑक्साइड होता है जनरली, जो लाल रंग का होता है। जनरली मरकरी इज यूज्ड बिकॉज़ इट इज शाइनिंग सरफेस एंड गुड रिफ्लेक्टर। मरकरी का भी उपयोग करते हैं क्योंकि शाइनिंग सरफेस में होता है और एक गुड रिफ्लेक्टर भी है। When we stand in front of mirror, we are able to see our image. The image formed behind a mirror is of the same size as we are and also at the same distance from the mirror. However, the image formed in a plane mirror is laterally inverted. तो प्लान मिरर से जो इमेज बनता है वो आप देखेंगे कि क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है, और ये उसी आकार के होते हैं, उतने बड़े होते हैं जितने बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, और इसमें जितनी दूरी पर ही बनते हैं हमें, जितना दूरी पर कि ऑब्जेक्ट को प्लान मिरर के सामने रखा जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, यानी प्लान मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लान मिरर के पीछे उतनी दूरी पर इमेज बनेगा। और लैटरली इन्वर्सन क्या होता है कि अगर आप दाएं हाथ को उठाएं प्लान मिरर के सामने, तो लगेगा कि बाएं हाथ को आप उठा रहे हैं, और अगर आप बाएं हाथ को उठाएं तो लगेगा प्लान मिरर में कि आप दाएं हाथ को उठा रहे हैं, यानी वहां पर 180 डिग्री से रोटेशन हो जाता है इमेज का। तो जब रोटेशन 180 से होता है, इसको कहते हैं लैटरली इन्वर्सन। तो कोई चीज लिख करके अगर आप देखें इसके सामने से ABCD बड़ा सा लिख करके सामने रख के देखें तो उल्टा दिखाई पड़ेगा, 180 डिग्री से रोटेट कर जाता है, तो ये कराता है लैटरली इन्वर्सन। जैसे एम्बुलेंस जो लिखा रहता है एम्बुलेंस की गाड़ी में, वो उल्टा लिखा रहता है, जिससे कि जो साइड मिरर से कोई देखेंगे उसको सीधा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहां भी लैटरली इन्वर्सन होता है, उससे सीधा वो पढ़ सकते हैं। Left side seems to be on the right and vice versa. That is, right side seems to be left. Later reading in a mirror is reversed from right to left as well. आप ऐसे लिखते हैं बाएं से दाएं की ओर, लेकिन उसमें दाएं से बाएं की तरफ लगेगा लिख रहे हैं। अगर सामने हम लिखेंगे तो लगेगा कि हम बाएं से दाएं लिख रहे हैं, जबकि हम लोग लिखते हैं, हम लोग प्राय बाएं से दाएं लिखते हैं। ये हिंदी में बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, उर्दू में दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। तो अगर उर्दू कोई लिख रहे हैं दाएं से बाएं, तो उसमें लगेगा कि बाएं से दाएं लिख रहा है, और हिंदी में ऐसे लिखते हैं देवनागरी लिपि, उसमें ऐसे हम लिखते हैं लेफ्ट से राइट, तो उस या इंग्लिश में लिखते हैं लेफ्ट से राइट, तो उसमें लगेगा कि राइट से लेफ्ट लिखा जा रहा है अगर कोई लिखे तो। फिर 180 डिग्री से रोटेशन हो जाता है, और ये कहलाता है लैटरल इन्वर्सन। The property of lateral inversion of an image in a plane mirror is applied in writing the word ambulance on vehicles that carry patients to hospitals. आप जानते हैं कि एम्बुलेंस में पेशेंट को ले जाया जाता है हॉस्पिटल में, और उसमें जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वो उल्टे अक्षरों में लिखा रहता है, यानी 180 डिग्री से रोटेशन के साथ। जैसे प्लान मिरर में एम्बुलेंस लिखने पर दिखाई पड़ेगा, उस तरह से लिखा रहता है, और जिससे कि हम सीधा पढ़ सके। जब भी कोई साइड मिरर में देखेंगे तो उनको लगेगा कि एम्बुलेंस पीछे से गाड़ी आ रही है, साफ साफ उनको दिखेगा। अगर वो सीधा लिखेंगे तो उल्टा उसमें पढ़ाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा, यानी उसे ठीक समझ में नहीं आएगा कि एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस की गाड़ी है। This is done so that the driver in the other vehicles ahead of the ambulance can see the word ambulance clearly in the rear view mirror and give way to the ambulance immediately. देखिए, एम्बुलेंस की गाड़ी हो या जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, जो आग बुझाने वाली गाड़ी है दस्ता का, तो वो सबको जल्दी से साइड दे देना चाहिए, क्योंकि वो जो है बहुत जरूरी काम के लिए निकलते हैं। अगर देर हो जाए तो आदमी की जान भी जा सकती है, क्योंकि इसमें पेशेंट रहते हैं, तो पेशेंट को डॉक्टर के पास जल्दी से पहुंचाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए एम्बुलेंस गाड़ी को तुरंत साइड मिलना चाहिए, और इसके लिए ही एम्बुलेंस लिखा रहता है गाड़ी में उल्टा,
क्योंकि अगर जो सामने वाली गाड़ी होंगे जो जिनको की पास देना है तो वो बढ़ने की एम्बुलेंस की गाड़ी आ रही है, ऐसे एक सायरन भी उस पर रहती है, एक आवाज भी आती रहती है। आप देखे होंगे एम्बुलेंस की गाड़ी में एक आवाज भी होती है और उस आवाज से भी लोग जो है जल्दी हट जाते हैं। और ऐसे घंटी बजाई जाती है जो कि आग बुझाने वाली गाड़ी आती है, तो उसमें आप देखे होंगे कि घंटी को बजाया जाता है और वो इससे क्या आता है कि लोग समझ जाए कि आग बुझाने वाली गाड़ी आ रही है और उससे वो साइड दे दे। It is not possible to take this image on the screen. अब जो प्लान मिरर से इमेज बनता है उसको आप देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो जो होता है वर्चुअल होता है, वो रियल इमेज नहीं होता। Such an image which cannot be obtained on the screen is virtual. It's called virtual image. An image from a plan mirror shows the following characteristics. अब देखिए प्लान मिरर में जो इमेज बनता है वो क्या क्या किस तरह का होता है। पहली बात तो है कि वो जो है सेम साइज का होता है। दूसरी बात बिहाइंड द मिरर होता है, बिहाइंड पीछे की ओर बनता है। बिहाइंड द मिरर सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, लैटरली इन्वर्टेड और वर्चुअल। ये सब इसका विशेषता है। यहाँ पर आपके बुक में भी दिया गया, इट इज अपराइट और इरेक्ट, यानी सीधा होता है। अगर आदमी उसके सामने खड़ा है उसका सिर ऊपर ही इस पे दिखाई पड़ेगा, यानी प्लान मिरर में भी सिर ऊपर दिखाई पड़ेगा, लेकिन लैटरली इन्वर्सन होगा, 180 डिग्री से रोटेट करेगा। इट इज अपराइट क्योंकि आदमी का शरीर जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, यानी एक बीच से एक लाइन डालेंगे दोनों तरफ एक तरह का लगभग होता है, इसलिए उसमें पता नहीं चलता है, उसमें लगता है कि हाँ उसमें लैटरल इन्वर्सन पता नहीं चलता है चेहरे को देखने से। लेकिन अगर हाथ को उठाएंगे हम राइट हैंड तो उसमें लगेगा लेफ्ट हैंड उठ रहा है, और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे तो राइट हैंड ऐसा दिखा पड़ेगा। It is upright or erect but appears reverse right to left. It is always virtual. Virtual होता है, इसी कारण हम इसको किसी पर्दे पर उतार नहीं सकते। It is of the same size as the size of the object. The image formed by the mirror is at the same distance behind the mirror as the object in front of it. और वैसा ही होता है जैसा कि इसके सामने ऑब्जेक्ट होता है उसी तरह का इमेज भी बनता है, यानी सेम साइज का, सेम साइज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ये सब कुछ खासियत है। When we go to move a movie hall to watch a movie, the light from the projector falls on the screen and we are able to see the image ऑन द स्क्रीन। हम देखते हैं कि जब हम सिनेमा हॉल जाते हैं तो उसमें प्रोजेक्टर से इमेज वहां पर पर्दे पर उतारा जाता है और उस पर्दे पर जो बना हुआ इमेज है उसको हम लोग देखते हैं, तो उसमें रियल इमेज होता है। जो इमेज की किसी पर्दे पर उतारा जा सके उसको कहते हैं रियल इमेज। तो such type of image that can be obtained on a screen is called a real image. The image formed by actual intersection of rays are real. जैसे हमने पहले बताया आपको कि जब रिफ्लेक्टेड रे वास्तव में मिलते और इमेज बनता है तो वो रियल इमेज होता है, और जब रिफ्लेक्टेड रे का अपरेंट इमिटिंग होता है यानी वो लगते हैं कि एक जगह से आ रहे हैं, तो वो जो होता है इमेज जो बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है। The image formed by actual intersection of rays are real image and is always inverted. Let us perform an activity to observe the behavior of image formed by plan mirror. अब जब बिहेवियर जो प्लान मिरर से बनता है इमेज का उसको समझने के लिए एक एक्टिविटी यहाँ पर दिखाया गया। एक एक्टिविटी कीजिए। एक्टिविटी 2 में है स्टैंड इन फ्रंट ऑफ प्लान मिरर with a candle in your hand, carefully observe the image formed on a mirror. एक कैंडल को जला करके कहता है प्लान मिरर के सामने रहिए, देखिए कि उसमें क्या होता है। तो वहां आप देखेंगे कि जो प्लान मिरर में दिखाई पड़ता है वो भी कैंडल का लौ ऊपर ही है, उसका फ्लैम ऊपर ही दिखाई पड़ता है और सिर भी जो है आपका ऊपर ही दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये अपराइट है, यानी जैसा सीधा है इरेक्ट कहते हैं उसको, इरेक्ट वो होता है, सीधा होता है। डज द इमेज आल्सो कहता है नाउ रेज योर राइट हैंड अप। अब दाहिने हाथ को आप ऊपर उठाएं तो क्या वो दाहिना हाथ उठाता है?
इमेज बायां हाथ उठाएगा, अगर दाएं हाथ को उठाएंगे, does the image also rise its right hand up? No, the image does not rise its right hand. इसका जो इमेज है वो रेज नहीं करता अपने राइट हैंड को, बल्कि वो क्या करता है, वो लेफ्ट हैंड को रेज करेगा। अगर आप राइट हैंड उठाएंगे तो लेफ्ट हैंड लगेगा उठा हुआ है। Now move forward towards the mirror. If you take 3 steps to reach the mirror surface, then count the number of steps taken by image to reach near the mirror surface. How many steps does the mirror move? Image move. इमेज अगर आप 3 स्टेप आप मिरर की ओर आगे बढ़े तो वो आप देखेंगे कि आपका जो इमेज है वो भी 3 स्टेप मिरर की ओर आ रहा है, नजदीक आ रहा है। इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस समान होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उतना ही इमेज का भी हाइट होगा, इरेक्ट होगा। ये सब इसमें खासियत होगी, विशेषता इसका यही है कि जब भी हम प्लान मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट का इमेज प्राप्त करते हैं तो वो तो सीधा होता है, दूसरा लैटरली इन्वर्टेड होता है, तीसरा कि सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, चौथा हुआ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, और पांचवा हुआ वर्चुअल। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक जो है प्रमुख है जो कि प्लान मिरर से बने हुए इमेज का होता है। प्लान मिरर में 5 कैरेक्टरिस्टिक जो इमेज का होता है उस पे आपने देखा प्रमुख रूप से the 5 characteristics, one of the is it is upright or erect but appears reverse right to left, it is always virtual, it is of the same size as the size of the object, the image formed by mirror is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. These are the properties of images formed by plan mirror. Okay? तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसा प्रॉपर्टी प्लान मिरर से बने हुए इमेजेस का होता है। और आपने देखा कि 2 तरह के इमेज होते हैं, एक वर्चुअल इमेज होते हैं और एक रियल इमेज। वर्चुअल इमेज तब होते हैं जबकि जो रिफ्लेक्टेड है वास्तव में नहीं मिलता है, बल्कि वो एक जगह मिलता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन रियल इमेज तब होता है जबकि वो एक जगह मिलते हुए प्रतीत होते हैं, एक जगह वहां पे वो एक जगह मिलते हैं, वास्तव में मिलते हैं तब रियल इमेज, और वास्तव में नहीं मिलते हैं तो इमेजनरी इमेज बनता है। इस तरह से आज आपने पढ़ा कि एक बार फिर से सब बात को दोहरा देते हैं। लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। पहली बात तो है कि लाइट जो है ये दिखता नहीं है बल्कि ये सब चीज को दिखाता है। लाइट इज इटसेल्फ इनविजिबल but it makes all the things visible due to diffuse reflection. Diffuse reflection के कारण हम आसपास सब चीज को देख लेते हैं, यानी irregular reflection के कारण। और ये किसी भी मीडियम में चल सकता है, बिना मीडियम का भी चल सकता है। Light is an electromagnetic wave. It needs no any medium to travel. It can travel vacuum also. कोई जरूरत नहीं है इसको मीडियम की, बट इट कैन ट्रेवल इन मीडियम आल्सो, बट इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू एन ऑपेक ऑब्जेक्ट। ऑपेक ऑब्जेक्ट से होके पानी होता है, लेकिन ये और जैसे मीडियम गैस मीडियम है जो ट्रांसपेरेंट है उस पे चल सकता है। जो भी मीडियम ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूकेंट है, ट्रांसलूकेंट, ट्रांसपेरेंट और ऑपेक, ये ट्रांसपेरेंसी का आधार पर यानी लाइट के पार होने या ना होने के आधार पर ऑब्जेक्ट को 3 भाग में बांटा गया। आप लोग पढ़े हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम लाइक ग्लास, वाटर, एयर। और फिर होता है एक ट्रांसलूकेंट ऑब्जेक्ट व्हिच अलाउ पार्शियली लाइट टू पास थ्रू देम, राइट, लाइक रब्ड ग्लास, वाइल्ड पेपर, राइट, मडी वाटर। यस, these are the frosted glass, these are the translucent, and opaque object are those we do not allow light at all to pass through. ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। फिर दूसरे दिन आप देखिए अब क्या होता है। दूसरे दिन हो सकता है कि आमने सामने पढ़ा है या हो सकता है तो इस तरह से जैसा भी हो फिर आगे जारी रखेंगे। ओके, नाउ थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.